Hello friends, in this video we shall learn the multiplication of the algebraic expressions. There are cases of multiplication like multiplication of a monomial by a monomial, multiplication of a binomial by a monomial, multiplication of a trinomial by a monomial. Similarly, multiplication of a binomial by a binomial and so on. In question number first of the exercise 9.3, here we have to multiply this monomial by the binomial q plus r, or the binomial q plus r is to be multiplied by the monomial 4p. For this, we will multiply each and every term of the binomial by this monomial, along with the multiplication of the signs of the respective terms. Here 4p is positive and q is also positive. So plus into plus gives plus. Then this 4 1 ja, here 1 is understood. So 4 1 ja 4 and p into q will be written as p into q. That is pq. Now plus into plus, we will multiply this 4p to this r. 4 1 ja 4 pr. This is the required answer. In second case, this monomial is to be multiplied this binomial in the same way as we have done in the first part. This AB into A gives plus into plus plus, and A into A is A square and then B. Then plus minus minus A into B square. यहाँ पर जो एक्सपोनेंट एंड पावर्स के जो रूल्स हैं वो भी फॉलो होंगे, साइन रूल और rules of exponents and powers. Third, here a plus b is to be multiplied by 7a square b square. Multiply this a by this 7a square b square with sign. So plus into plus plus, 7 1 ja 7. यहाँ पर 1 छिपा हुआ है. इस 7 से पहले 1 में इंटू होगा, फिर अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट से होगा, और जो अनलाइक टर्म्स होगा उसको एज इट इज़ इंटू में लिखेंगे. 7 1 जा 7, a इंटू ए स्क्वायर गिव्स a पावर 3, देन b स्क्वायर. Then we will multiply 7a square b square with b. So plus into plus plus, 7 1 is 7, a square b cube. Fourth part is a square minus 9, which is to be multiplied by 4a. 4a into a square gives 4 1 ja 4, a square into a cube minus 9 4 ja 36a. Fifth part, where this trinomial is to be multiplied by the monomial 0,
and this gives 0, 0 and 0. Ultimately the final result is 0. Now in second part, that is question number 2, the first expression is A and the second expression is B plus C plus D. Means we have to multiply this by this or this by this. तो यहाँ पर भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे, पहले साइन का प्रोडक्ट, देन नंबरों का प्रोडक्ट और देन वेरिएबल का प्रोडक्ट. A इंटू बी प्लस सी प्लस डी, पहले हम यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ भी प्लस है, 1 छिपा हुआ, ये 1 है, तो इस प्लस इंटू प्लस से प्लस आएगा, देन 1 इंटू 1 से 1 आएगा और A इंटू बी से A इंटू बी आएगा. ये 1 शुरू में नहीं लिखते, ये तो अंडरस्टूड होता है. इसी तरीके से हम A का C में करेंगे तो यहाँ A इंटू सी और A का D में करेंगे तो A इंटू डी आंसर आएगा, जो कि हमें यहाँ पर लिखना है AB प्लस AC प्लस AD. अब दूसरे पार्ट में x प्लस वाई माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है 5xy से. आप मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड में के टर्म्स में करिए या राइट साइड के टर्म्स से लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स में कीजिए. हमें अगर यहाँ पर x लेते हैं तो इसका 5xy में, देन y का फिर 5xy में और देन माइनस 5 से xy 5xy में मल्टीप्लाई करना है. कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए, सभी टर्मों में मल्टीप्लाई करना है. तो आइए x से जब यहाँ इंटू करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और 5x स्क्वायर y, देन प्लस अगेन 5x y स्क्वायर एंड इन लास्ट 5 5 जा 25x y. In third part, we have to multiply 6p square minus 7p plus 5 by this p. So we will get 6p cube minus 7p square plus 5p. Now in fourth part, 4 1 जा 4 p पावर 4 q स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर p स्क्वायर यहाँ भी है और p स्क्वायर यहाँ भी है, पावर 8 हो जाएंगी. सेम बेस पर मल्टीप्लिकेशन में पावर 8 हो जाती है. देन सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करने से 4 1 जा 4 p स्क्वायर q पावर 4. अब यहाँ पर a से ए बी सी में करेंगे तो a स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर. इस तरीके से ये प्रोडक्ट निकालना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट a स्क्वायर इंटू 2a रेज टू पावर 22 इंटू 4a रेज टू पावर 26. सबसे पहले साइन का प्रोडक्ट, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव सो देयर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. नाउ नंबरों का प्रोडक्ट, यहाँ पर 1 है, ये 2 है और ये 4 है. 1 इंटू 2 इंटू 4 इज 8. देन a स्क्वायर इंटू a पावर 22 इंटू a पावर 26 गिव्स a पावर 2 प्लस 22 प्लस 26 a पावर 50. The answer is 8a power 50. Now second part, 2 by 3xy into minus 9 by 10 x square y square. यहाँ पर हम नंबरों को पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ कर सकते हैं. हमने यहाँ पर नंबरों को पहले मल्टीप्लाई किया है. देन एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैंसिलेशन अगर हो जाता है तो कैंसिलेशन कर लेंगे और फाइनली
प्लस इंटू माइनस से माइनस, 3 1 जा 3/5. अब x इंटू एक्स गिव्स x पावर 3 and y इंटू वाई स्क्वायर गिव्स y पावर 3. इस प्रकार -3/5 x क्यूब y क्यूब इज द प्रोडक्ट. बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ भी हम पहले नंबरों को मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे और इसके बाद वेरिएबल पार्ट्स को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे. 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 2 जा 4, p इंटू पी क्यूब गिव्स p पावर 4, q क्यूब इंटू q gives q power 4. And this is x into x square into x cube, सेम बेस है, पावर 8 हो जाएंगी. 1 इसकी 1 पावर है जो कि अंडरस्टूड होती है. 1 से बड़ी पावर लिखी जाती है, 1 अंडरस्टूड होती है. So their product is x raised to power 10. Now question number 4. Simplify this and find its values for x is equal to 3 and for x is equal to 1/2. हमें यहाँ पर दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करना है. कैसे सिंप्लीफाई करना है? 3x इंटू, यहाँ इंटू छिपा हुआ है, 4x माइनस 5. तो सबसे पहले हमें इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है और उस रिजल्ट में 3 को ऐड करना है. तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं. 3x इज ए मोनोमियल एंड 4x माइनस 5 इज ए बाइनोमियल. 3x से पहले 4x को और देन माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ. पहले टर्म का साइन पॉजिटिव है, 3x इज पॉजिटिव and 4x is also positive, so their product is positive. Then 3 4 ja 12 and x into x gives x square. Now 3x is positive and 5 is negative, so plus into minus minus, and 3 5 ja 15x. This is the product. Then plus 3. Since all the terms are unlike, so they cannot be further combined. So we will keep these terms as they are. Now we have to find out the value of this expression by putting x is equal to 3. We have 12, x की प्लेस पर 3 रखना है और इसे सिंप्लीफाई करना है. दिस इज 12 एंड दिस इज 9. दिस गिव्स 108 minus 45 plus 3. These two terms are of the same sign, so they will be added. Now these are of opposite sign, so will be subtracted and gives 66. इसी तरीके से सेकंड पार्ट में इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को 1/2 रख करके निकालना है. तो अब हम x इक्वल टू हाफ पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3. This gives 12 into 1/4 minus 15/2 plus 3. This is 3. So this 3 minus 15/2 plus 3. 3 and 3 gives 6 minus 15/2. Take 1 LCM. This gives 12 minus 15. So answer is minus 3/2. बी पार्ट में भी हमें सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन दिस एंड
find its value for a is equal to 0, a is equal to 1 and a is equal to -1। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में 3 पार्ट बना दिए गए हैं। तो पहला जो मेन उद्देश्य है इसको सिंप्लीफाई करने का, तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे एज पर साइन। द गिवन एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, हेयर into is understood, so it means we have to multiply a square plus a plus 1 by this a. We will have a cube, then a square, then a 1 ja a plus 5. All the terms are unlike, so they cannot be further simplified. Now first part starts. We have to find out the value of this expression at a is equal to 0. तो यहाँ a की जगह 0 रखना है, जहाँ जहाँ a है 0 रखना है, और इस तरीके से फाइनल 5 इसका आंसर आ जाएगा। इन सेकेंड पार्ट we have to substitute a is equal to 1. We have what we have, a की जगह 1 रखना है, तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, so this is 1, this is 1, this is 1, this is 5, so answer is 8. And in third part we have to put a is equal to -1. We have -1 cube plus -1 square plus -1 plus 5. When -1 is multiplied by -1 3 times, so the result is -1. And when it is multiplied 2 times, gives +1. This is plus into minus, final sign is -1, then plus 5. -1 plus 1 cancel out, -5 plus 5 gives 4 as the answer. Now question number 5, add 5p minus q, q into q minus r and r minus p. तो सबसे पहले हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, p माइनस q एक एक्सप्रेशन है, देन प्लस लगाएंगे, दूसरा एक्सप्रेशन ये है और तीसरा एक्सप्रेशन ये है। इन तीनों ही एक्सप्रेशन को ऐड करना है, तो सबसे पहले यहाँ इनटू है तो इनटू करेंगे, p का अंदर इनटू करेंगे तो ये p स्क्वायर माइनस पी क्यू देगा, देन प्लस q से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, और इसी तरीके से आर स्क्वायर माइनस आर पी। अब इनको हम इस तरीके से रख सकते हैं, स्क्वायर वाले एक जगह रख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए फर्दर इनको कंबाइन नहीं किया जा सकता है, आंसर यही होगा। तो ये ए पार्ट था। अब हमें बी पार्ट में देखना है, यहाँ भी एडिशन का है, 2x देन z माइनस एक्स माइनस वाई और 2y z माइनस वाई माइनस एक्स, इन दो को ऐड करना। तो पहले यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2y से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन साइड करेंगे, दोनों ही टर्म पॉजिटिव हो रहे हैं तो साइन इनका पॉजिटिव आएगा। देन 2 1 जा 2xz, देन प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। अब 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ पर हम लाइक टर्म्स देखेंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, दोनों अनलाइक है। लाइक में माइनस 2xy और माइनस 2xy है तो माइनस 4xy हो जाएंगे।
देन प्लस 2yz है एंड देन 2zx या 2xz. तो दिस इज द result. Now in C part, the question is subtract this expression from this expression. तो सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन को लिखना है, देन माइनस लगा करके इस एक्सप्रेशन को लिखना है और फिर सिंप्लीफाई करना है. आइए देखते हैं कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पर हमें 3l माइनस 4m प्लस 5n को निकालना है, इसलिए उसे पहले पीछे लिखेंगे और निकालने के लिए हम माइनस साइन रखेंगे. इस एक्सप्रेशन में से निकालना है इस एक्सप्रेशन को, जैसा कह रहा है वैसा यहाँ पर लिखना है और इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करना है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ इंटू है तो पहले इंटू करेंगे, यहाँ भी इंटू है तो इंटू करेंगे और देन इस साइन का मल्टीप्लिकेशन इस एक्सप्रेशन के टर्म्स में करेंगे और देन फिर कंबाइन करना है. पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 4 10 जा 40 ln माइनस 4 3 जा 12 lm प्लस 4 2 जा 8 l स्क्वायर माइनस 3l से करेंगे तो 3l स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 lm प्लस 15 nl. 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर. अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस साइन से इंटू होने से, तो जो नेगेटिव है पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा. ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. अब कंबाइन करना है. 40 ln या nl दोनों ही लाइक टर्म्स है. 40 में से 15 जाएंगे, 25 ln. अब ln देखते हैं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होगा और देन 8l स्क्वायर और माइनस 3l स्क्वायर, ये दोनों ही लाइक टर्म्स होने की वजह से इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 5l स्क्वायर आ जाएगा और इस तरीके से इसका फाइनल आंसर 5l स्क्वायर प्लस 25 ln बनता है. फोर्थ पार्ट डी पार्ट में हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को निकालना है इस एक्सप्रेशन से. तो सबसे पहले हम 4c ब्रैकेट माइनस a प्लस b प्लस c लिखेंगे और जो चीज़ निकालनी जानी है वो माइनस लगा करके निकलने वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे और देन कैलकुलेट करेंगे. प्रोडक्ट निकालने के बाद अब इस माइनस साइन से इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. अब हमें लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है. ए स्क्वायर का कोई भी दूसरा साथी नहीं है, माइनस 3a स्क्वायर. इसी तरीके से बी स्क्वायर का भी दूसरा कोई लाइक टर्म नहीं है, माइनस 2b स्क्वायर. देन 4c स्क्वायर, ये अकेले अकेले टर्म है. अब देखेंगे ए बी कहाँ कहाँ है. माइनस 3ab और प्लस 2ab, तो ये दोनों ही लाइक हैं. रिजल्ट इनका माइनस ए बी आएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया. नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव आ जाएंगे 1ab. फिर BC देखेंगे तो 4BC इधर है और 2BC इधर है, तो 4 and 2 पॉजिटिव 6BC हो जाएगा. और लास्ट में CA है तो नेगेटिव 3 इधर है और नेगेटिव 4 इधर है, तो नेगेटिव 7CA. और ये फाइनली आंसर निकल कर के आ रहा है. उम्मीद है कि आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन सॉल्यूशन के माध्यम से सीखा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.